Next topic given in your book of grammar portion is phrases and clauses. Phrase. A phrase is a group of words that make sense but not complete sense. It does not contain a subject or a finite verb. फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सेंस कन्वे कर रहा होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं. द सेंटेंस विच इज नॉट कन्वेइंग अ कंप्लीट सेंस इज अ फ्रेज. और जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, फिनिट वर्ब भी नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द ड्रॉर, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, एटसेट्रा. दीज आर phrases. Okay, kinds of phrases: a noun phrase, adjective phrase and adverb phrase. There are three kind of phrases: noun phrase, adjective phrase and an adverb phrase. A noun phrase is a group of words that function as a noun. नाउन फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की तरह से फंक्शन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टोरीज एंड पोएम्स. Nina decided to write stories and anecdotes. Here it is a noun phrase. An adjective phrase is a group of words that function as an adjective. Adjective phrase वो group of words हैं जो कि adjective की तरह function कर रहे होते हैं. For example, my aunt wore a silk sari at her friend's wedding. Here, my aunt wore a sari made of silk at her friend's wedding. Here it is an adjective phrase because it is working as an adjective, because made of silk. Silk here is an adjective because it is telling the quality of the material. An adverb phrase is group of words that function as an adverb. और adverb phrase वो group of words होते हैं जो कि adverb phrase की तरह काम कर रहे होते हैं. For example, Gandhiji wanted his son to make a collection of passages, hymns and verses methodically. Gandhiji wanted his son to make a collection of passages, hymns and verses in a methodical manner. It is an adverb phrase. यहाँ पर adverb बताया जा रहा है कि किस तरह से. Methodical तरीके से. It is an adverb phrase. Now, clauses. A clause is a group of words that has a subject and a predicate of its own. It forms a part of sentence. A clause can be dependent or independent. क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कि सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है एंड इट इज कन्वेइंग इट्स कंप्लीट सेंस, और जो कि एक कंप्लीट सेंस दे रहा होता है उसे हम क्लॉज कहते हैं. फ्रेज does not convey a complete sense, while on the other hand clause conveys a complete sense. Okay, it can be dependent clause also and independent clause also. An independent clause conveys a complete meaning and can stand on its own. Sometimes an independent clause forms a complete sentence. Independent clause जो है वो एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होता है और अपना एक अलग तरीके से इट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन. और कभी कभी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस भी फॉर्म कर देता है. Examples: I have read a great deal in the prison. One independent clause. This is an independent clause. यहाँ ये पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है, पूरा सेंटेंस बता रहा है कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है. सेकेंड, Sumi reached the station on time and she boarded the train. यहाँ पे ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और दोनों के दोनों पूरा सेंस कन्वे कर रहे हैं. अ डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. इट नीड्स द हेल्प ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक द कंप्लीट सेंस. और एक डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो एक कंप्लीट सेंस नहीं बताता है, उसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है अपना सेंस कन्वे करने के लिए. So children, these are phrases and clauses. In the same way you will do the exercises related to it. Another topic which is given in your book of grammar portion is simple, compound and complex sentences. A simple sentence is a sentence with just one clause. Simple sentence वो sentence होता है जिसमें सिर्फ एक clause होता है. Example: Mahatma Gandhi was a great leader. A compound sentence consists of two independent clauses that can stand alone individually. और compound sentence वो sentence होता है जिसमें कि दो independent clauses होते हैं और दोनों independent clauses अलग अलग अपना meaning convey कर सकते हैं. The clauses are connected by coordinating conjunctions. और ये clauses जो हैं वो coordinating conjunction से connected होते हैं, जैसे कि and, or, but, so, yet, for, or,
नॉर एग्जाम्पल वी शुड फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी, हमें महात्मा गांधी के फुट स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। एंड वी शुड बिलीव इन नॉन वायलेंस, और हमें अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए। दिस इज अ कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर दो क्लॉजेस दे रखे हैं। फर्स्ट क्लॉज है हमारा वी शुड फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ महात्मा गांधी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये एक पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। एंड वी शुड बिलीव इन नॉन वायलेंस, ये हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये भी हमारा पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है। और इन दोनों क्लॉज को हमने एक सेंटेंस में कनेक्ट कर रखा है कंजक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके। तो ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कंपाउंड सेंटेंस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो कि अपना मीनिंग पूरी तरह से अलग अलग कन्वे कर सकते हैं और जिन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हम कनेक्ट करते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो या फिर एक क्लॉज होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि अपना मीनिंग पूरी तरह से कन्वे कर रहा होता है, एंड एक या दो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि अलग से अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते। ये क्लॉजेस, ये तीन क्लॉजेस जो हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि बिकॉज, दो, ऑल्दो, दैट, व्हेन, सिंस, आफ्टर, इफ, विच और हु। एग्जाम्पल वी रैन इंडोर्स व्हेन द रेन केम। We ran indoors, indoors is an independent clause। यहाँ ये पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है कि हम घर में भागे। एंड द सेकेंड सेंटेंस इज when the rain came, it is a dependent clause here, it is not conveying the full meaning। So here in one sentence we are using one independent and one dependent clause, so it is a complex sentence। So quickly हम देखते हैं कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विद जस्ट वन क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में केवल एक क्लॉज होता है। सेकंड हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे दो क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो दोनों अपना अलग भी अकेले मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक या फिर दो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। सो चिल्ड्रन, these were three types of sentences: simple, compound and complex sentences. One extra exercise given in your literature book, that is word power. Here we will learn about prefix and suffix. As opposed to a prefix which is added to the beginning of a word, a suffix is added at the end of a word. Prefix वो होता है जिसे हम बिगनिंग में ऐड करते हैं वर्ड के, और सफिक्स वो होता है जो कि हम वर्ड के एंड में ऐड करते हैं। बोथ प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर हाउएवर यूज्ड टू मेक न्यू वर्ड्स, और दोनों सफिक्स और प्रीफिक्स न्यू वर्ड्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। A suffix is a letter or group of letters added to the end of a word to make another word. सफिक्स जो है लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं जो कि एंड में हम ऐड करते हैं किसी वर्ड के एक न्यू वर्ड बनाने के लिए, जैसे कि क्विक, उसमें हमने ly लगा दिया। ly इज अ सफिक्स क्योंकि इसको हम वर्ड के एंड में ऐड कर रहे हैं तो वो सफिक्स है। और जो वर्ड के स्टार्टिंग में ऐड होता है जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ हमें एक प्रीफिक्स ऐड करना है। प्री मतलब पहले, तो पहले मतलब वर्ड के पहले ऐड कर रहे हैं, तो ऑनेस्ट के पहले हमें प्रीफिक्स ऐड करना है, तो प्रीफिक्स होगा डिस। डिसऑनेस्ट, डिस हमने डिस प्रीफिक्स ऑनेस्ट के साथ लगाया तो वो हमारा न्यू वर्ड बन गया डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। इन द सेम वे जब हम वर्ड के एंड में कुछ ऐड कर रहे होते हैं तो वो हमारा सफिक्स होता है और उससे भी हमारा न्यू वर्ड बन जाता है, जैसे कि क्विक का क्विकली, सैड का सैडनेस। स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कलर्ड पार्ट्स: डेमोक्रेसी, ड्रेनेज, कॉम्पिटिशन, डिनायल, लेक्चरशिप, मदरहुड। यहाँ पे जो कलर्ड वर्ड्स हैं दीज आर द सफिक्स, ये हमने इन वर्ड्स के साथ ऐड किए हैं और ये एक न्यू वर्ड्स बन गए हैं। सफिक्स हेल्प अस इन द सेम वर्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सफिक्स हमें हेल्प करते हैं सेम वर्ड में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, जैसे कि कंपीट वर्ब जो है वो कॉम्पिटिशन बन जाता है, बरी वर्ब जो है वो बरियल बन जाता है। द फॉलोइंग आर फ्रीक्वेंटली यूज सफिक्स विद देयर मीनिंग्स:
ये इस टेबल में बहुत सारे सफिक्स दे रखे हैं उनके मीनिंग्स के साथ और उनके एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे कि ACY, TION, ये सफिक्स हैं सारे, ANCE, ENCE, FUL, हुड, UREALNESS। मीनिंग, फर्स्ट वाला AC मतलब स्टेट, TION मतलब रिजल्ट, स्टेट एक्शन, ANCE ENCE मतलब क्वालिटी, FUL मतलब टू अ ग्रेट एक्सटेंट, हुड मतलब स्टेट ऑफ समथिंग, URE मतलब रिजल्ट एक्ट, AL मतलब एक्शन, NESS मतलब क्वालिटी और स्टेट, जैसे कि डेमोक्रेसी, लीगेसी, कंपटीशन, परफेक्शन, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, measure, exposure, denial, trial, alertness, wellness. These are the few suffix जो कि हमने words में ऐड किए हैं, ऐड कर रखे हैं और उन्होंने words का meaning पूरी तरह से change कर दिया है. So the chapter 2 is over now, both literature portion and grammar portion.